Okay, so welcome all. Welcome to SATSTET. And today we will learn about randomization, or we can say sampling. Okay, so which is very important topic in clinical industry as well as market research, finance. Okay, so why and what is the importance of randomizations? What is the term of randomizations, sampling? Okay, so like we will learn today keywords like simple, stratified randomization, simple randomizations, block, then what is a random number, what is a seed, okay, by which method we are doing randomization. So it is a proc plan, proc survey select, and SAS random number like ran univariate, normal, and binomial. So these are the keywords. So today we will focus the randomizations. We will understand the basic difference of randomization and sampling. Okay. Then we will understand the type of randomization. Then we will do one practical. Okay. How we are doing randomization in the SAS. Okay. So what is randomizations basically? So randomizations ensures that each uh, patient has an equal chance of receiving any of the treatment under study. સર સર આખું સર સ્કીપ થઈ ગયું, અવાજ જ સ્કીપ થઈ ગયો તમારો પહેલાથી જ. અચ્છા એવું છે. પ્રીવિયસ આગળ જે છે ને હા, ઓકે પ્રીવિયસ સ્લાઇડનો જેટલો તમે ડિટેલ આપીને બધી સ્કીપ થઈ ગઈ. ઓકે ઓકે હમ ઓકે હવે સર, હવે થેન્ક યુ. દેખાય છે. હા હવે દેખાય છે યસ સર, હે ને. યસ સર, યસ સર. ઓકે દેખાય છે, અવાજ હા નતો સર આવતો તમારો. okay okay so randomization and sampling that which method which type of subjects keywords like simple randomization stratified randomizations block randomizations okay then what is a random number seed number and which is the SAS method like proc plan is a method which we are using in the industry for randomization and sampling. So today we will learn this all things and then we will do one practical how we are doing randomization in SAS. Okay. So the first of all, what is the randomization and what is the sampling? Okay. So we know that when we are playing the cricket, okay. So we are doing toss, right? Head or tail. Why? Because everybody want to batting first. Okay. So that's why we are doing kind of randomizations. So anybody can get the betting and it's depend on the coin. Okay. So this is called simple randomizations in layman language in our routine life. Okay. So why we are doing that? You all know that, right? So every people has an equal chance of receiving any of the treatments under study or in layman language. Okay, suppose there are two teams, so both team have equal chance of getting head. Okay, and who will won? They will get the chance to select batting or bowling. Simple, right? So this is called randomizations. In simple term, our lottery system કરીએ છીએ, okay? In the lottery system, what we are doing, okay? We are just writing the name in one sheet and we keep all sheet in one box and we are just taking one sheet and whatever the name they will be selected. So this is kind of randomization. So we know the we are using this all method is in our routine life when we are playing games. Okay, in the industry, mostly in the clinical diary industry. So we will get taste, we will get reference drug. Okay, so we are doing by randomization. So in that case, everybody, like each patient, has an equal chance of receiving any of the treatments under the study. So nobody know which drug they will get. It's purely depend on the randomization. Okay. So ऐसा कोई नहीं कहेगा यार कि भाई आपने चीटिंग की मुझे टेस्ट दे दिया मुझे रेफरेंस दे दिया इट विल डिसाइड बाय रैंडमाइजेशन राइट हम ऐसा करते हैं ना लेमन हमारी रूटीन लाइफ में भी करते हैं जब हम कोई गेम खेलते हैं तो तब भी हम ये एक चीज़ वो करते हैं ना फिर मतलब कुछ भी ऐसे so the process to assign treatment to patient by chance okay so what is randomization the process to assign treatment to patient by chance तो by chance means वो डिपेंड होता है कि कौन सी सिस्टम आप यूज़ करते हो जैसे कि लॉटरी सिस्टम किंग क्रॉस करते हो हेड या टेल आता है रैंडम एलोकेशन होता है ठीक है
तो ये सब क्या है, रेंडमाइजेशन। वाई हमें रेंडमाइजेशन क्यों करना है, फ्री फ्रॉम बायस, किसी को बायस नहीं होना चाहिए। ओके, कि भाई इसको जैसे कि हम किंग क्रॉस करते हैं तो उसमें इट्स अ डिपेंड ऑन द random things, like it will be head or it will be tail. Okay, so there is a like equal and unbiased distributions, किसी को कुछ भी आ सकता है, and it will be depend on the random number, random things, और बैलेंस द ग्रुप्स। ओके, जैसे कि हम क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं कि भाई किसको टेस्ट देना है, किसको रेफरेंस देना है, वो कोई पर्सन डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है रैंडमाइजेशन इटसेल्फ। ओके, सो टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ रेंडमाइजेशंस, द कॉमन टाइप्स ऑफ रेंडमाइजेशन से इंक्लूड का सिंपल रेंडमाइजेशन है, जैसे हम सिंपल कुछ भी मतलब जैसे कि हमने ये ले लिया ना, हेड और टेल ले लिया, दैट इज सिंपल रेंडमाइजेशन। आप लॉटरी सिस्टम डाल दो, हर एक का नाम डाल दो, है ना, फिर जिसका भी नाम उस जितने भी नाम की चीट बनाई है एक बॉक्स में डाल दो, फिर वो बॉक्स को हिलाओ, और फिर जिसका भी नाम सिलेक्ट होता है, कोई भी एक को बोलेगा कि भाई आप इसमें से एक चीट निकालो, ठीक है, तो वो गाना गाएगा। तो दैट इज अ प्योरली रेंडमाइजेशन। ओके, सैस में स्पेसिफिक सिस्टम है, तो उससे हम कर सकते हैं ये। इंडस्ट्री में किसको टेस्ट देना है, किसको रेफरेंस देना है, मान लो कि 12 सब्जेक्ट है, किसको रेफरेंस देना है, किसको टेस्ट देना है, तो वो भी हम इससे ही करना है, इससे ही करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द रेंडमाइजेशन, यू गॉट द पॉइंट। ओके, सिंपल रेंडमाइजेशन एंश्योर्स दैट ईच पेशेंट हैज एन इक्वल चांस होना चाहिए, ओके, हर एक को, ऑफ रिसीविंग एनी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर द स्टडी। ठीक है, और उसमें कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कोई पूछता है तो व्हाट इज द रीजन, फ्री फ्रॉम बायस, इक्वल एंड अनबायस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडमाइजेशन। ओके, उसके टाइप्स है सिंपल, ब्लॉक, स्ट्रेटिफाइड, अनइक्वल। ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सैम्पलिंग एंड रेंडमाइजेशन। ओके, तो सैम्पलिंग एंड रेंडमाइजेशन का क्या डिफरेंस है, देखो, जैसे कि सैम्पलिंग है तो हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये, और उसमें से अच्छे अच्छे सैंपल हमारे, उसमें से जो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में सेट होते हैं उनको निकालना है, दैट इज अ सैंपल। ठीक है, सो रैंडम सैंपल वर्सेस रैंडम असाइनमेंट्स, ये रैंडम सैंपल्स हम लेते हैं यहाँ से, जिसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशंस एंड हैपन्स बिफोर असाइनमेंट। रेंडमाइजेशन में उसको असाइनमेंट होगा कि भाई चलो ये अभी जो जितने बंदे यहाँ से लिए हैं, ठीक है, मान लो एक ऐसा सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई इतने बंदे हैं, इसमें से हमें चाहिए जिसकी एज मोर देन 18 हो, ठीक है, उसमें से जो फीमेल हो प्रेग्नेंट ना हो, एज वेल एज वो स्मोकिंग ना करता हो, उसको डायबिटीज़ हिस्ट्री ना हो, तो उसमें से इतने सैंपल्स हमने सिलेक्ट किए। अभी इसमें से मान लो ये 6 लोग हैं, तो उसमें से 3 लोगों को हमें टेस्ट देना है, 3 लोगों को रेफरेंस देना है, तो वो रेंडमाइजेशन से होगा। लेकिन पॉपुलेशन में से जो सैंपल हम लेते हैं दैट इज अ सैम्पलिंग। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेंडमाइजेशन एंड सैंपल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से हम सैम्पलिंग करके कुछ सैंपल निकालेंगे और उसको फिर रैंडम असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग हमेशा बिफोर रेंडमाइजेशन या असाइनमेंट से पहले होता है। देन एक बार हो गया सैंपल, देन ईच पार्टिसिपेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग प्लेस इनटू एनी ग्रुप। ठीक है, वो कंट्रोल ग्रुप भी हो सकता है या एक्सपेरिमेंटल, या टेस्ट और प्लेसिबो, टेस्ट और रेफरेंस, वॉट एवर। ठीक है, सो दिस इज द वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि वी आर गोइंग टू डू ट्रायल्स ऑन पावर 12 पीपल। ठीक है, हमें 12 लोगों को पे ट्रायल करना है, एंड फॉर दैट वी इन्वाइटेड 30 पीपल। ठीक है, बिकॉज वी हैव सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, इंक्लूजन क्राइटेरिया, we need to give taste and reference drug to them and need to compare drug response। ठीक है, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि एज मोर देन 80 है, 80 होनी चाहिए, नॉन स्मोकिंग और अल्कोहल होना चाहिए, नो डायबिटिक हिस्ट्री, नो बीपी हिस्ट्री होना चाहिए। तो ये 30 लोग, ये जो 30 लोग है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 21 लोगों ही ये इंक्लूजन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ओके, एंड सो आउट ऑफ दिस 21 में से हमें 12 लोग को सिलेक्ट करना है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए क्या
दो और सैंपल भी सिलेक्ट करते हैं, 14 लोगों लेते हैं, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर एक दो बंदे ड्रॉप हो गए तो। सो ये जो 21 है आउट ऑफ 30, दैट इज़ अ सैम्पलिंग। और उसमें से जो हम 14 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उसको रैंडमाइज करते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट विल गेट आर एंड 6 सब्जेक्ट विल गेट टी। अगर 14 करने हैं तो यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने सेफ्टी के लिए दो सब्जेक्ट ज़्यादा लिए हैं। So this is a basic difference of sampling and randomization. Okay. So once sampling is done, then we will do randomization for treatment assignment. अगर आप सैम्पलिंग करना है तो उसके लिए भी दो तीन मेथड है, जैसे कि सिंपल रैंडम है, फिर क्लस्टर है, सिस्टेमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो अच्छे से यूज़ होता है दैट इज़ अ रैंडमाइजेशन। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें, कि सिंपल रैंडम सैंपल कैसे है। तो सिंपल, जैसे कि कोई भी रैंडमली ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। सिस्टेमेटिक में क्या होता है, एक सिस्टम होती है कि चलो अभी इसको 1 2, देन दो दो का गैप रख के इसको लिया, फिर दो का गैप रख के इसको लिया, फिर दो का गैप रख के इसको लिया। तो दिस इज सिस्टम, एक सिस्टमेटिक है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, लाइक स्ट्रेटा है कि भी हर एक ग्रुप में से एक एक निकालो, जैसे कि ये ग्रुप है, स्ट्रेटा बोले तो ग्रुप्स और स्ट्रेटिफिकेशंस, और उसको आप बोलते हैं कि स्पेसिफिक ब्लॉक बोल सकते हैं या स्पेसिफिक स्तर बोल सकते हो ना, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो उसको, अगर प्रॉपर उसका इंटरप्रिटेशन करें तो स्पेसिफिक ग्रुप में से स्ट्रेटा बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, ये ग्रुप में इसमें से एक ले लिया और इसमें से एक ले लिया, ठीक है। क्लस्टर है, तो क्लस्टर में क्या होता है कि भाई स्पेसिफिक पूरा ग्रुप के पूरा क्लस्टर में एक साथ, ऐसा नहीं कि इसमें से एक एक जो भी सिलेक्ट होता है, जैसे 5 ग्रुप है तो उसमें से 2 ग्रुप ले लो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल, लाइक 4 वेल नोन सैम्पलिंग मैथड्स, ओके, जो रैंडमाइजेशन में यूज होती है। ओके, तो सिंपल रैंडमाइजेशन भी ये पूरा एक ग्रुप है, रिस्पॉन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप, ये पूरे ग्रुप में से 4 निकाल लो, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, इस हर एक ग्रुप में से एक एक निकालो, भाई ये ग्रीन वाला है उसमें से एक चाहिए, ऑरेंज वाला है उसमें से एक चाहिए, ब्लैक वाला है या ब्लू वाला है उसमें से एक चाहिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो हमने सैम्पलिंग तो सीख लिया, ठीक है, और वो कब होता है, रैंडमाइजेशन के बिफोर। अच्छा सैम पॉपुलेशन में से अच्छा सैंपल लेना, वो भी एक प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, और वो होनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे रूटीन लाइफ, लाइक क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, तो उस सैम्पलिंग उसके हिसाब से होना चाहिए। सो हाउ आर सब्जेक्ट्स एंड पेशेंट रैंडमाइज्ड। ओके, सो अभी जो करंट सिस्टम सिनारियो है, तो दो मेथड है, एक तो है कि बाय सॉफ्टवेयर हम प्रॉक प्लान करते हैं, ठीक है, नॉर्मली बीएबी स्टडीज़ में। और जो क्लिनिकल ट्रायल होता है तो वहाँ पे हम थर्ड पार्टी आईआरटी मेथड है, ठीक है, आईआरटी मेथड है, इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कोई दूसरी कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कोई सीआरओ है, आईक्यूविया है, तो वो रैंडमाइजेशन कोई दूसरी कंपनी को देगी, जैसे कि सेस्टेट को, ठीक है। तो सेस्टेट क्या करेगा, वी हैव वन सॉफ्टवेयर, सो वो विल डिसाइड कि भाई कौन से पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट मिलेगी। Okay, so by like enroll patients into clinical trials, then randomize patients and manage steady drug supply, so ये सारी चीज़ें ये आईआरटी में होती है, जो अभी करंट सिस्टम चलती है, ठीक है। तो एक है हमारी प्रॉक प्लान जो हम सैस में करते हैं, और दूसरी है आईआरटी, तो उसका फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। कोई सपोज कोई पेशेंट आया तो उसको क्या सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि भाई आपको कौन सा कौन सी ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। वो कंप्यूटर इटसेल्फ, कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो ही डिसाइड करता है, जिसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, जिसमें कॉल करना है और वो कॉल पे बताएंगे कि भाई आपको ये नंबर डायल करो, ये साइट पे है, तो आपका ट्रीटमेंट ये असाइन हुआ है। और इसमें इंटरेक्टिव वेब रिस्पॉन्स सिस्टम्स, तो इसमें वेब थ्रू होता है। तो IVRS इज वेरी वेल नोन सिस्टम राइट नाउ, ओके, इन करंट सिनारियो। जैसे कि यूजर्स एंटर इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू वॉइस प्रॉम्प्ट्स थ्रू द कीपैड्स ऑन अ फोन, ऐसे सिस्टम में आपको खुद
जो पेशेंट होगा उसको खुद उसको सैम्पलिंग असाइन होगा और सिस्टम ही करेगा। ठीक है, यूजर वुड रिस्पॉन्ड टू प्रॉम्प्ट्स ऑन अ कंप्यूटर रादर देन ओवर द फोन। तो एक दूसरी सिस्टम है जो वेब में होती है, एक फोन में होती है, एक वेब में होती है। दैट्स व्हाई दिस इज वेब एंड दिस इज कॉल IVRS एंड IWRS। तो ये अभी करंट सिनारियो है, तो ये सेफ है। देखो बायस, फ्री फ्रॉम बायस करने के लिए आज एक 5 लोगों की टीम है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि भाई चलो अल्पेश भाई रैंडमाइजेशन करेंगे, तो अल्पेश भाई, मैं अल्पेश भाई को बोल सकता हूँ ना, मैं बायस कर सकता हूँ उनको पैसे खिला के, भाई कि ये सब्जेक्ट को आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो कि पार्थ है तो उसको भाई आप टेस्ट ही देना, ठीक है। फिर कोई दूसरा बंदा है, अंकिता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई इसको रेफरेंस ही देना, तो ये कर सकता है। लेकिन ये कंप्यूटर में और ज़्यादा सेफ है, इसलिए आजकल इसका सिनारियो चल रहा है, ठीक है। वाई वी आर गोइंग टू ऑन IVRS एंड IWRS। नाउ व्हाट इज अ सिंपल रैंडमाइजेशन? सो सिंपल रैंडमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस मेथड इज इक्वलेंट टू टॉसिंग अ कॉइन, सिंपल, फॉर ईच सब्जेक्ट दैट एंटर्स अ ट्रायल सच एज हेड्स और एक्टिव, लाइक प्लेसिबोज, और मतलब सिंपल रैंडम रैंडम नंबर जनरेट करके वो कर सकते हैं। ब्लॉक रैंडमाइजेशंस में क्या होता है कि चलो आपने मान लो कि 12 सब्जेक्ट्स का रैंडमाइजेशन किया, 6 सब्जेक्ट को टेस्ट दिया, 6 सब्जेक्ट को रेफरेंस दिया, लेकिन और रेंडमाइज करना है, ओके। मुझे ये भी देखना है कि यार ये 12 सब्जेक्ट्स बैलेंस भी रहने चाहिए, ठीक है। मान लो कि स्टडी खत्म होते होते एक सब्जेक्ट निकल गया, तो 11 सब्जेक्ट रहे, तो एक में क्या रहेगा, एक में 6 रहेगा, एक में 5 रहेगा, मतलब सिक्स सिक्स बंदे को 5 मिलेगा, और 5 बंदे को, मतलब एक 6 बंदे को टेस्ट मिलेगा, 5 बंदे को रेफरेंस मिलेगा। तो ये बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, राइट, टेस्ट और रेफरेंस में। तो इसको भी टेक केयर करने के लिए और ब्लॉक, मतलब ब्लॉक में रैंडमाइजेशन विद इन द ब्लॉक, ठीक है। तो 12 सब्जेक्ट्स में 4 4 लोगों का ब्लॉक, 4 ब्लॉक बना दिए, 3 ब्लॉक बना दिए, और उसमें फिर दो दो को, जैसे कि पहले ब्लॉक में दो दो को टेस्ट, दो को रेफरेंस मिलना चाहिए, दूसरे ब्लॉक में भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब ब्लॉक में रैंडमाइजेशन। जैसे कि सिंपल रैंडमाइजेशन डज नॉट गारंटी बैलेंस इन नंबर ऑफ ड्यूरिंग द ट्रायल। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल में तो क्या होता है कि कोई अगर ड्रॉप आउट भी हो गया तो वो अनबैलेंस हो जाता है। So, simple randomization does not guarantee balance in number of during the trial, especially if patient characteristics change with the time, right? कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ड्रॉप भी हो सकता है, early patients thicker than later, okay? So early imbalance can be corrected. So block randomization is often used to fix this issue. जैसे कि मान लो हमारे पास दो ड्रग है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, और ए और बी है। हम मान लो हमने ब्लॉक साइज बना दी 4, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे ब्लॉक बन जाएंगे कि ए बी बी वाले, बी बी ए वाले, ए बी वाले, तो हर एक में आप देखोगे तो बैलेंस रहेगा। यहाँ पे भी 2 ए है, यहाँ पे 2 बी है, यहाँ पे 2 बी है, 2 ए है, यहाँ पे ए बी है तो 2 ए है, 2 बी है, ठीक है। तो ये मोर रेंडमाइजेशन हुआ, मतलब और ज़्यादा रेंडमाइज किया है, ब्लॉक रेंडमाइजेशन, क्योंकि एक एक फैक्टर बढ़ गया है ना, तो और लाइक randomizations within each block, like possible treatment allocations within each block, okay. So the basic idea of block randomization is to divide potential patients into m blocks, और उसमें भी फिर हमें ऐसे करना है कि हर एक ब्लॉक में बैलेंस रहे, उसमें दो ए, मतलब ए ड्रग और बी ड्रग इक्वल होनी चाहिए। मान लो ए टेस्ट है, ये बी रेफरेंस है, तो वो उस हिसाब से होना चाहिए। तो उसमें जैसे क्या होगा, सिंपल में तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक में और ज़्यादा रेंडमाइज हो रहा है, और हम फ्री फ्रॉम बायस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में સર स्ट्रेटिफाइड। और સર यस। સર પેલું બ્લોક સાઇઝ 2x2 = 4 છે ને, हम्म। એમાં ટુ નો મતલબ શું થયો કે બે ટ્રીટમેન્ટ હશે? सो 2x2 બ્લોક સાઇઝ ઓફ 2x2 = 4, અને પછી 4 છે એટલે નંબર ઓફ ટ્રીટમેન્ટ્સ એમાં 4 આવી ગયા, એમ કે 4 પેશન્ટ હશે, એમાંથી બે ને બી મળ્યો હશે અને બે ને એ મળ્યો એક્ઝેક્ટલી, હશે, એક્ઝેક્ટલી। બટ દેન આ બ્લોક સાઇઝ એ તો ડિપેન્ડ, એ આપણે પ્રેક્ટિસ બી કરીશું ને, બ્લોક સાઇઝ કે જેટલા સબ્જેક્ટ હોય ને એ પ્રમાણે બ્લોક નક્કી કરવાના,
સપોઝ 18 સબ્જેક્ટ 24 છે 36 છે તો એ પ્રમાણે પછી આપણે બ્લોક નક્કી કરી દેવાના, જેટલી ટ્રીટમેન્ટ છે ને એ પ્રમાણે બ્લોક બની જશે. એ આપણે હમણાં પ્રેક્ટિકલ કરીએ ને એટલે વધારે આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, Sure. યા. Yeah. હવે સ્ટ્રેટિફાઈડ, તો સ્ટ્રેટિફાઈડ એટલે એક સ્ટેજ હજી વધારી દો. ઓકે, કે ભાઈ આપણી જોડે પહેલાં શું હતું, સિમ્પલ હતું, પછી ધેન બ્લોક કર્યું. હવે એમાં પણ વધારે, જેમ કે અહીંયા તમે જુઓ કે ફોર એક્ઝામ્પલ એજ ગ્રુપ છે લેસ દેન 40, 41 to 60 અને 60, ને એમાં પણ પાછું સેક્સ છે, મેલ અને ફિમેલ જોવું છે. તો અહીંયા કેવું સ્ટ્રેટિફિકેશન તમારું વધી ગયું છે. લાઈક વેન મોર સ્ટ્રેટિફિકેશન રિક્વાયર્ડ, વેન મોર ગ્રુપ્સ આર ધેર, તો વી વિલ ગો ફોર સ્ટ્રેટિફાઈડ રેન્ડમાઇઝેશન્સ. ક્યારેક ક્યારેક શું થાય, ઇમ્બેલેન્સ રેન્ડમાઇઝેશન નંબર ઓફ સબ્જેક્ટ્સ રિડ્યુસીસ સ્ટેટિસ્ટિકલ પાવર. ઓકે, કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય, સિમ્પલથી પણ નથી થતું, બ્લોકથી પણ ટેક કેર નથી થતું, તો imbalance in prognostic factor is also more likely inefficient for estimating treatment effect. अल्टीमेटली केवु है, તમે चीटिंग करो. ओके, अल्टीमेटली अगर अगर हम चीटिंग करते हैं ना कोई भी फॉर्म में, इन रिसर्च या ट्रायल्स और गेम, तो इट्स नॉट एथिकल और वैलिड. ओके, हम अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस करने के लिए ऑल पॉसिबल वेज हमें अप्लाई करना होगा. दैट्स वाई सिंपल रेंडमाइजेशन से ब्लॉक में गए, ब्लॉक में से स्ट्रेटिफाइड में गए. स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटा बोले तो पोर्शंस ज़्यादा होते हैं, फैक्टर ज़्यादा होते हैं. जैसे कि यहाँ पे एज है, फिर उसमें भी मेल फीमेल देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है और इसमें 2 है, तो 3 इंटू 2 6. तो इतने स्ट्रेटा हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा for example with 6 diabetics there is a 22% chance of this, and this split by block randomization only. Certified randomization is the solutions to achieve balance within subgroups. अगर ब्लॉक रेंडमाइजेशन करना है तो चलो ये 2 कैटेगरी में कर लिया, लेकिन इसमें भी विद इन ग्रुप्स अगर आपको कुछ सब ग्रुप्स में जाना है तो यूज ब्लॉक रेंडमाइजेशन सेपरेटली फॉर डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक. ओके, तो ब्लॉक हो गया और उसमें भी फिर हमें और 2 कैटेगरी चाहिए, उसमें भी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक भी करना है. ठीक है, तो जैसा कि हम आगे का एग्जांपल था तो उसमें ये कर दिया ब्लॉक रैंडमाइजेशंस. लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट, मतलब ये दो लोगों को ए मिला है, 2 लोगों को बी मिला है, तो उसमें भी मुझे डायबिटिक नॉन डायबिटिक का भी उसमें ब्लॉकिंग करना है. तो देन स्ट्रेटिफाइड में जाएंगे, उसमें से मतलब जितने भी ब्लॉक बनाए गए उसमें से ये कैटेगरी भी, और उसमें हर एक कैटेगरी में मेल फीमेल भी आना, बैलेंस होना चाहिए. ओके, so stratification can balance subjects on baseline covariates, tend to produce comparable groups with regard to certain characteristics. ठीक है, gender, age, race, disease severity, thus produce a valid statistical test. तो ये क्या इन शॉर्ट, ये क्या है स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन? इन शॉर्ट हम समझे तो जब आपके पास मोर स्टेटा है, मोर स्टेटा बोले तो मोर फैक्टर्स है. ठीक है, तो यू कैन यूज स्ट्रेटिफिकेशन लाइक स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन. जैसे कि यहाँ पे एज भी है और सेक्स भी है और ट्रीटमेंट तो आने वाली है. ठीक है, हाउ टू क्रिएट रेंडमाइजेशन, तो विच इज वाइडली यूज प्रॉक प्लान. ओके, प्रॉक सर्वे सिलेक्ट भी है और रैंडम नंबर है. तो ये एक लाइक ऑप्शंस है कि रैन, यूनिवेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन विच इज widely used in the industry, that is proc plan. So proc survey select and random number is just for information purpose. In interview maybe someone asks that how many procedure, then we can uh, uh, speak that like proc plan, proc survey, and by random number we can also do that. So proc plan, so these are the basic कोड फॉर प्रॉक प्लान. अगर जैसे कि 2 वे क्रॉस ओवर है, ठीक है, तो सिंपल सा कोड है उसका. जैसे कि 14 सब्जेक्ट्स के लिए करना है प्रॉक प्लान ऑर्डर सीड नंबर. ओके, तो सीड, व्हाट इज द सीड नंबर? सो इंक्लूड सीड नंबर. जैसे कि एज पर एसओपी ऑफ द एनी कंपनी, जैसे कि हमारी सेस्टेट की पॉलिसी है, सेस्टेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रैंडमाइजेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 नंबर हमारा प्रीफिक्स है और जो भी प्रोजेक्ट नंबर होता है. ठीक है, तो जैसे कि 60721, तो वो हम सीड नंबर दे देते हैं. आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन वो प्री डिफाइन होना चाहिए कैसे देना है. ठीक है, तो ये नंबर क्या करेगा, बैकएंड में जाके
सैस में जाके नंबर देगा और उसके हिसाब से सैस एक प्रोग्राम इटसेल्फ उसका रैंडमाइजेशन करेगा। यहाँ पे फैक्टर्स करके ऑप्शन है, उसमें ब्लॉक्स डालने हैं। सीक्वेंस कितनी है? 2 है, क्योंकि टू वे क्रॉस ओवर है। एवरीबडी नो राइट, टू वे क्रॉस ओवर में क्या होता है? सीक्वेंस क्या होते हैं? टीआर और आरटी। ये जो हमने क्लिनिकल रिसर्च में हमने देखा था, राइट? तो टीआर और आरटी ये सीक्वेंस यहाँ पे डाल देना है और ये रैंडम एलोकेशंस करेगा। जैसे कि हम एक प्रैक्टिकल करते हैं उसका, ठीक है? randomizations, right? Yeah. तो yes, two way. ओके, जैसे कि हमने किया एक रैंडमाइजेशन, एक प्रैक्टिकल करते हैं। सो ओके, ये सब तो हमें पता है, सब जस्ट मार्जिन है पेज का। एक टाइटल दिया हुआ है रैंडमाइजेशन शेड्यूल्स, एक स्टडी है ओपन लेबल, 2 ट्रीटमेंट, 2 पीरियड, 2 सीक्वेंस, क्रॉस ओवर, इट्स एस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये सब तो हमें आता है। ओके, जो इंजन है ये है प्रॉफ प्लान। ये 14 सब्जेक्ट्स के लिए हमें रैंडमाइजेशन करना है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है? सीड नंबर। तो सीड नंबर्स के लिए क्या है? इट्स डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 प्रोजेक्ट नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपकी पॉलिसी के हिसाब से आप कोई भी नंबर दोगे उसके हिसाब से वो सैस बैकएंड में प्रोसेस करेगा। तो उसका मतलब की पॉइंट्स क्या है? सीड नंबर, देन ब्लॉक्स कि भाई 14 सब्जेक्ट्स है, ठीक है? तो उसके लिए हमें पता है कि कितनी ट्रीटमेंट है, सीक्वेंस कितनी है? 2। तो 7 2 ज़ा 14। तो सीवेल्स में ये डालना है, ठीक है? और ब्लॉक 7 डालना है और सीड नंबर ये देना है, ठीक है? सीक्वेंस कितनी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी जैसे कि ये हम करते हैं, मैं पूरा रन करता हूँ, फिर क्या हुआ, किया हुआ है? हाँ, फिर तो जस्ट सबस्ट्रिंग किया हुआ है, देख लेते हैं। इसको हम रन करते हैं। सिंपल टू वे क्रॉसओवर स्टडी है जिसमें 2 ट्रीटमेंट होती है, ठीक है? और 14 सब्जेक्ट्स के लिए करना है, तो इसलिए हमने ब्लॉक्स कितने लिए? 7 लिए, और सीक्वेंस 2 है इसलिए, राइट? सो सी दिस इज अ, ये बैकएंड में क्या करेगा? ये 7 ब्लॉक बनाएगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है? ब्लॉक्स कितने बनाए उसने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 5 6 7 3, ठीक है? और उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है। तो 2 बोले तो सीक्वेंस नंबर है, जैसे कि सीक्वेंस नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको, यस, जैसे कि आर और टी, आर टी और टी आर, राइट? हमने ये कोड में दिया हुआ है। यस, हियर, ठीक है? सो ब्लॉक्स एक में, जैसे कि 2 नंबर का सीक्वेंस है यहाँ पे, टी आर, 1 नंबर का है आर टी। तो जो पहला पहला जो सब्जेक्ट्स है 1 एंड 2, ब्लॉक्स नंबर 1 में ये मिलेगा, ठीक है? पहले को मिलेगा टी आर और दूसरे को मिलेगा आर टी। 1 बोले तो आर टी है और 2 बोले तो टी आर है। वैसे हर एक ब्लॉक्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है? जैसे कि 3 नंबर का ब्लॉक है, तो फिर 2 नंबर का ब्लॉक है, तो उसका 1 और 2 है, ठीक है? तो 1 बोले तो आर टी एंड टी आर। वैसे 7 ब्लॉक्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके वो सैस खुद ही दे देगा। तो पहले सब्जेक्ट को कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? कि टी आर, तो उसमें फर्स्ट पीरियड में टी, सेकंड पीरियड में आर। ये सब्जेक्ट को कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? तो आर टी, तो उसमें से फर्स्ट पीरियड में आर और दूसरे में जो भी है टी, राइट?
सो दिस इज कॉल्ड रेंडमाइजेशंस। अच्छा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। दिस इज द इंजन। ओके, ये क्या करता है कि DBG1 देखोगे आप, यस, तो ब्लॉक्स के हिसाब से, मतलब ये पहला जो ब्लॉक्स है उसमें सीक्वेंस दे दिया उसने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, इसमें पुट यूज़ किया है, ठीक है। क्यों किया है, देखो इसमें सब्जेक्ट्स जो है हर एक को मुझे सब्जेक्ट नंबर भी देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक है तो उसको 1 और 2, ठीक है। फिर सेकंड, फिर थर्ड 4 5 6 7 8, उसके हिसाब से जो जो यहाँ पे नंबर है तो इसको यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है ना ऑब्जर्वेशन में, जैसे नंबर है यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही उसको नंबर मिल जाएगा। तो हमारा DBG2 बन गया। फिर DBG2 को हमने सीक्वेंस, उसमें से सीक्वेंस निकाली, जैसे कि T को हमने 1 दे दिया, R को पीरियड 2 दे दिया, जैसे कि ये हमने क्रिएट किया है। इतना था हमारे पास, राइट। फिर इसको हमने पीरियड 1 बोल दिया, इसको पीरियड 2 बोल दिया, मतलब ये सीक्वेंस में से हमने सबस्ट्रिंग यूज़ करके पीरियड 1 पीरियड 2 बना दिया। तो दिस इज अवर रैंडमाइजेशंस। फिर ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा फाइनल रैंडमाइजेशन हो गया। सो सिंपल क्रॉस ओवर में ऐसे करते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें, की पॉइंट्स, सीट नंबर, और जितने सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 14 सब्जेक्ट्स, 4 14 सब्जेक्ट्स। तो सीक 2 वे क्रॉस ओवर है तो सीक्वेंस यही रहेगी, तो उसके हिसाब से फिर दो, ये सीक्वेंस तो फिक्स हो गई, तो ब्लॉक्स ऑब्वियसली 7 ही रहेगा, 7 2 14। ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है कि उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में एक ही सीक्वेंस होती है, क्योंकि उसमें 2 पीरियड नहीं होते, उसमें एक ही पीरियड होता है, उसको सीक्वेंस भी वैसे ही मिलेगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक और एक स्टडी की हुई है, तो ये हम पूरा रन करते हैं। एक पैरेलल स्टडी है सिंपल, ठीक है, और उसमें 19 सब्जेक्ट लिया हुआ है, इसको रन करते हैं, ठीक है पूरा। तो दिस इज़ अ पैरेलल स्टडी, ओके, और उसमें 18 सब्जेक्ट्स पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पैरेलल डिज़ाइन में, आपको पता है, हमने ये सीखा है कि एक ही मतलब एक ही पीरियड होता है तो एक ही ट्रीटमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल कौन से सब्जेक्ट को कौन सी ट्रीटमेंट मिलनी है, बस वही दिखाना है, वही उसका रैंडमाइजेशन करना है। तो सिंपल है कि पैरेलल में क्या होगा कि सिंपल ब्लॉक नंबर, ठीक है, और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कितनी है यहाँ पे, 2 है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, सीक्वेंस नहीं आएगी क्योंकि सीक्वेंस रहेगी नहीं, TRRT क्रॉस ओवर में था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 2, और लेवल्स 1 और 2, दैट इज इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कोई भी रेंडमाइजेशन के लिए ये चीज़ आनी चाहिए कि 18 सब्जेक्ट्स के लिए करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 18 सब्जेक्ट्स। तो हमें पता है कि ट्रीटमेंट 2 है, और ब्लॉक 9 का करना पड़ेगा क्योंकि 9 2 18, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नंबर दे देना है यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ मिल गया। तो ये सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, ब्लॉक की सीड नंबर और लेवल्स। अगर आप ये देखोगे DBG2 देखते ही, ठीक है, तो 18 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे ब्लॉक बन गए, हमने कितने ब्लॉक बनाए, 9। और ट्रीटमेंट 1 2 1 2, ट्रीटमेंट 1 बोले तो टेस्ट या रेफरेंस, लेकिन एक एक पीरियड में देना है,
जो भी जिसको मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, तो वो बैलेंस रहेगा। जैसे कि देखो, ये ब्लॉक में एक 1 और 2, ये ब्लॉक में 2 और 1, मतलब बैलेंस है। ये ब्लॉक में एक को टेस्ट मिला है, एक को रेफरेंस मिला है, वैसे हर एक में। और वो होना चाहिए थ्रू आउट द ब्लॉक, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कि, अच्छा, 3 ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट बोले तो उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट है, R, T1, T2, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस 3 हो जाती है, जैसे कि T1, T2, R भी सीक्वेंस होती है, और T2, R, T1 भी सीक्वेंस होती है। तो ये 3 वे क्रॉसओवर स्टडी का रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे? तो चीज़ तो वो सेम ही रहेगी, ठीक है। हमारे लिए काम का जो है ये इतना ही है। इंजन सीट नंबर डाल दिया आपने, वो तो कॉमन रहेगा, ठीक है। फैक्टर्स डाल दिए कि भाई कितने कितने चाहिए, उसके हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट चाहिए उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे भी 18 सब्जेक्ट्स का किया हुआ है। हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। तो 3 वे क्रॉसओवर में क्या होता है, 3 ट्रीटमेंट होती है। ये भी हमने क्लिनिकल रिसर्च में पढ़ा कि 3 वे क्रॉसओवर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ब्लॉक्स बना दो, और सब्जेक्ट्स तो हमें पता है सीक्वेंस 3 है, तो 6 3 ज़ा 18। और हर एक को, मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी पहले ब्लॉक्स में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, उसको सीक्वेंस कौन सी मिलेगी, 2 1 3, और सीक्वेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। पहली सीक्वेंस है 2, 2 बोले तो T1 T2 R, 1 बोले तो R T1 T2, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका रैंडमाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे, यस, यहाँ पे हमने लिखा है, राइट, 4 18 सब्जेक्ट्स। तो इट्स वेरी इजी, उसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इट्स वेरी टफ और काइंड ऑफ, इट्स वेरी इजी, ओके। ये जो हार्ड है ये है, बस हमको ये पता होना चाहिए। प्रॉक प्लान सीड नंबर क्या है, तो वो कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। आपकी बर्थ डेट भी आप डाल सकते हो, कोई भी, कुछ भी, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो रैंडमाइजेशन सैस करेगा, वो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल, फुटनोट और ये सब तो हमें पता है। और एक एग्जांपल लेना है तो फुल्ली रेप्लिकेट का ले सकते हैं, लेकिन हमारी मीटिंग डाउन हो रही है, तो सेकंड मीटिंग करते हैं, ठीक है। फुल्ली रेप्लिकेट का भी हम कर सकते हैं, जैसे कि, तो उसमें क्या करना है, 4 सीक्वेंस लेनी है। ये 16 सब्जेक्ट्स के लिए है, तो सीक्वेंस 4 है, तो ब्लॉक्स भी 4 बनेंगे, सिंपल। यही इसका हार्ट है, ठीक है। बाकी का सेम है, सीट नंबर ये, बस ब्लॉक 4। ये सब्जेक्ट के हिसाब से 16 सब्जेक्ट है, तो 4 ब्लॉक बनाओ, क्योंकि सीक्वेंस जो है उसके हिसाब से ब्लॉक रखने हैं। 16 है तो 4 सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है, TR 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 TR, फुल्ली रेप्लिकेट है, इसलिए जितनी सीक्वेंस है उसके हिसाब से 4 × 4 16, ठीक है। 10 मिनट के गैप में हम फिर से स्टार्ट करते हैं रैंडमाइजेशंस। मैं मीटिंग सेव कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद फिर से हम ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है।